Good morning, dear students. How are you all? Hope all of you enjoyed your vacation and now it's time to get back to studies. Today we are going to start with notice writing. Notice writing is a part of writing skills which you learn in grammar. We have already learnt essay writing, we have already learned letter writing, formal and informal, both. But now today we'll start with notice writing. So let us start. Notice writing is a part of writing skills that you learn in English grammar. Okay, it is a form of communication which is sent to many people at once. It's not like it is given to one by one personally, it is sent to everyone all together. Fine. So there are various types of notice writing, but we are going to learn only a few of them. Fine. So what exactly is a notice? Let us see. A notice is a very short written piece of communication which is usually written in a formal style. So we'll go through notice writing, its type, how to write notice and many other things in this video. So you need to pay attention, and I have also written some notice which you need to copy in your essay notebook and stick the pictures accordingly. According to the notice you're supposed to stick the picture. So now let us have a look what exactly is notice writing. What is notice? A notice is a formal piece of communication. The purpose of notice is to announce or display information to a specific group of people. Like if you want to share some information with someone, we have to write a notice and we share the information with a particular group of people. Notices are generally meant to be pinned up on specific display boards, either in school or educational institutions or in public places. So what does this point mean, students? कि जो notice होती है ना, उसको लिख के एक notice board पे ऐसे लगा देते हैं. तो उससे क्या होता है, जो भी लोग आते हैं दे कैन रीड इट आउट. इट इज़ डन इन द स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक प्लेसेस पे भी. नोटिस आर इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड दे अपीयर इन द न्यूज़पेपर. नोटिस है ना, गवर्नमेंट भी इशू करती है और उसमें भी सब अलग अलग डिटेल्स होती है रिलेटेबल. ओके, तो इस तरह से various kinds of notices are there, but we are going to learn only a few of them. Fine. Now we will see the format of notice writing. A notice should be written in the format like title notice. तो जब भी हम notice लिखते हैं तो हमको notice heading डालना पड़ता है. Name of the organization, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नोटिस दे रहा है. जैसे कि अगर हमारी स्कूल दे रही है तो GVVTC इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसा पूरा हेडिंग आएगा, और उसने नोटिस दिया है तो उसके बाद में नोटिस आएगा. हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, किस बारे में नोटिस है वो भी लिखना पड़ता है. डेट लिखनी पड़ती है. बॉडी में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और सिग्नेचर लिखते हैं ब्लॉक लेटर्स में, डेजिग्नेशन, किसने नोटिस लिखा है वो सब. फाइन. अब देखो मैंने क्या लिखा है. नोटिस राइटिंग. A notice writing is a formal means of communication. The purpose of the notice is to display information or announce about a particular event टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. सपोज कि अगर हमारी स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है तो हम नोटिस पर लिख के बता सकते हैं कि भाई डांस कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन आवर स्कूल, वी आर गोइंग टू हैव दिस कॉम्पिटिशन, दैट कॉम्पिटिशन. और इफ़ एनीथिंग लाइक लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस भी होती, किसी की कोई चीज़ खो गई है, किसी का कुछ खो गया, किसी को कोई कुछ मिल गया है, तो नोटिस लिख के हम नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं एंड देन वी कैन शेयर द इंफॉर्मेशन विद द पीपल. See, let us learn about the format of the notice. Firstly, we will write the name of the organization. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर नाम दिया होगा. अगर क्वेश्चन में दिया है GVVTC इंग्लिश मीडियम तो आपको वही नाम लिखना है. और अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि भाई डैफोडिल एकेडमी या रायन इंटरनेशनल स्कूल या कोई और भी स्कूल का नाम दे सकते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो वही आपको लिखना पड़ेगा व्हेन यू राइट अ नोटिस. सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जब भी नोटिस लिखो तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया होगा वही लिखना है. और अगर नहीं दिया है, राइट अ नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ योर स्कूल, तो आपको आपकी स्कूल का नाम लिखना है. बराबर. सेकेंडली, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने के बाद में हम लगाएंगे नोटिस, हेडिंग डालनी है NOTICE, नोटिस इन कैपिटल. एंड देन लेटर विल गिव द हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस कि भाई किस टाइप की नोटिस हम लिख रहे हैं. लॉस्ट एंड फाउंड लिख रहे हैं, कोई फंक्शन है उसके रिलेटेड लिख रहे हैं, क्या है क्या नहीं. और फिर बाद में किसने लिखी है नोटिस, उसका नाम और डेजिग्नेशन. मेनली हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स मास्टर, ऐसे लोग ही नोटिस लिखते हैं, राइट. और वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे केस में अपने को हेड बॉय और हेड गर्ल ही नोटिस लिखने वाले हैं.
नाउ टाइप्स ऑफ नोटिस में आता है लॉस्ट नोटिस, मतलब किसी का कुछ खो गया है एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज राइटिंग अ नोटिस। दूसरा आता है लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस में आता है कोई चीज़ खो गई है और फिर किसी को मिली है तो पर्टिकुलर पर्सन को लेनी है वो चीज़। सो लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस इज रिटन एंड नोटिस रिगार्डिंग एन इवेंट। नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। अभी दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखी जाती है। इट मस्ट बी टू द पॉइंट, ब्रीफ एंड शुड आंसर ऑल द इंपॉर्टेंट WH क्वेश्चंस। नोटिस कभी भी बहुत एक्स्ट्रा नहीं लिखी जाती है, टू द पॉइंट लिखते हैं, छोटी सी लिखते हैं, ब्रीफ लिखते हैं, उसको बहुत लंबा नहीं खींचते, टू द पॉइंट होना चाहिए और उसके अंदर सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बराबर। लेटर कैसे हम बड़ा बड़ा लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है। नोटिस इज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल। नेक्स्ट लेट अस हैव अ लुक एट द फॉर्मेट। देखो सी, यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन अ बॉक्स, neat and tidy, use a scale, I have not used. So the format of the notice goes as name of the organization or the office who's issuing the notice, then you'll write notice date, notice heading, that means what exactly you are writing the notice about, that body of the notice. Letter is written by mistake but actually body of the notice will come, and then signature of the writer, name of the person who's writing the notice, and designation. He may be a head boy, a head girl, the monitor of the class, vice principal, principal, etc. Okay students, so that is all about the format. In 6th standard, we will be studying lost and found notice and notice regarding the events which occur in the school. So let us see how a notice is written and let us see the format and the content. Okay, fine. So now see, here is the question. Like this type of question will be given to you. You are the head boy or head girl of Daffodil Academy. Now you can see here you have the name of the school, that is Daffodil Academy. So you don't have to write your school's name. A pair of sports shoes were found on the school playground. Write a notice asking the owner to collect it from you. Okay, so in this format you will have the question, and how you will be writing the notice, that I will show you. See here, firstly you will write the notice like Daffodil Academy, the name of the organization, then you will give the heading notice, then you will give the heading 1st December 2021. इट इज़ अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, किसी के शूज़ खो गए और किसी को मिले, सो इट्स अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस. सो विल गिव द हेडिंग इन दिस वे. दिस इज टू इन्फॉर्म दैट अ पेयर ऑफ शूज़ हैड बीन फाउंड ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड yesterday. The rightful owner may please identify and collect it from the head boy. See here students, use proper scale and pencil to draw the box. No pen must be used to draw the box. Underline the name of the school, notice and everything. Write it in the middle. December 2021, that date you are supposed to write. जो जिस को अंडरलाइन किया है ना मैंने, दैट यू आर सपोज टू अंडरलाइन. और एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नोटिस है कि भाई दिस इज टू इन्फॉर्म दैट अ पेयर ऑफ शूज हैड बीन फाउंड ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड yesterday. The rightful owner may please identify and collect it from the head boy or the head girl. XYZ head boy head girl. XYZ ही लिखना, आपका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नाम दिया हुआ नहीं है. अगर क्वेश्चन में नाम दिया है कि यू आर रितु और यू आर राहुल and you are the head boy or the head girl, then you will be writing your name. Unless and until in the question the name is given, you are not supposed to write the name. तो अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो आपको आपका वही नाम लिखना है. जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से ही नोटिस लिखनी है, अपना कुछ भी वहाँ पे ऐड नहीं करना. अभी ये दूसरी नोटिस है, देखो यू आर राहुल मेहता, यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो आपको राहुल मेहता ही लिखना है. फिर लड़की हो के लड़का हो लिखेंगे राहुल मेहता. हेड बॉय ऑफ मॉडर्न स्कूल, राइट अ नोटिस रिगार्डिंग इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन विच विल बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल. ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझना है कि भाई स्कूल का नाम है मॉडर्न स्कूल, हेड बॉय का नाम है राहुल मेहता और डेजिग्नेशन में आएगा हेड बॉय, और हम लिख रहे हैं नोटिस रिगार्डिंग इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन. फिर इस तरीके से आपको नोटिस लिखनी है कि मॉडर्न स्कूल नोटिस, उसके बाद में आएगी डेट 21 दिसंबर 2021, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन उसको अंडरलाइन करना है. एंड इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल on 30th December 2021. The event will start at 10 a.m. in the school auditorium. Students who are interested should get their names registered to respective class teachers by 23rd December 2021. एंड द नेम ऑफ द हेड बॉय इज़ राहुल मेहता. तो राहुल मेहता लिख के ब्रैकेट में हेड बॉय डालना है और पूरी नोटिस को हमें ब्रैकेट में रखना है, मतलब ये जो बॉक्स बनाया है पेंसिल से उसमें रखना है.
ओके, नाउ कॉपी बोथ द नोटिस इन योर ऐसे नोटबुक एंड स्टिक पिक्चर्स अकॉर्डिंगली। तो आगे वाली जो नोटिस है लॉस्ट एंड फाउंड की, और ये जो इंटर स्कूल डांस का कॉम्पिटिशन की नोटिस है, ये दोनों नोटिस आपको कहाँ लिखनी है, आपकी ऐसे की बुक में लिखनी है। यूल राइट ऑन विच साइड एंड यूल स्टिक पिक्चर्स ऑन विच साइड दैट यू आर नोइंग ओनली। ओके, यू अंडरस्टूड दिस नोटिस कि भाई इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है 30 दिसंबर को। आप 21 को लिख रहे हो नोटिस, थोड़ा टाइम दिया है लोगों को प्रैक्टिस के लिए या वॉट एवर, ठीक है। तो 30 दिसंबर को होने वाला है और 23 तक सबको अपने रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स को नाम एनरोल कराने। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने नोटिस में दे दी है। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट नोटिस इज़ टू बी रिटन इन द बॉक्स। पहले नोटिस लिख लेने की, उसके बाद में बॉक्स लगाने का। सो दैट इज़ ऑल अबाउट नोटिस राइटिंग स्टूडेंट्स। होप यू अंडरस्टूड दिस मच। कॉपी बोथ द नोटिस राइटिंग इन योर ऐसे नोटबुक, स्टिक पिक्चर्स अकॉर्डिंगली। डांस कॉम्पिटिशन है तो डांस कॉम्पिटिशन का पिक्चर लगाना। लॉस्ट एंड फाउंड में शूज़ है तो शूज़ का पिक्चर लगा सकते हो आप। ओके, सो राइट नीटली इन योर ऐसे नोटबुक, कंप्लीट दिस मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू ऑल वेरी सून। ओके।